Good morning, students. Good morning, ma'am. Why the attendance very thin? Students' number reducing day by day. What is the reason behind this? You are compelling that we take the attendance regularly. I think so. Because only 49 students have joined. Out of 90, only 49 students are present. Some are preparing for NEET, okay, but many of them are sitting idle, doing nothing. मैम 90 में से 30 स्टूडेंट ने ज्वाइन किए नहीं आज तक। अभी 52 कर लिए ज्वाइन। ठीक है, आज मैं अटेंडेंस लूंगी, देखती हूँ कितने कम बच्चे हैं। Skull, vertebral column, ribs, and last one is Ankit. Yes, ma'am. क्या क्या होता है एक्सियल स्केलेटन में? एक्सियल स्केलेटन में मैम सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड एक्सियल स्केलेटन, नॉट वर्टिबल कॉलम। मैम एक्सियल में जो भी शोल्डर मसल, ये शोल्डर देन क्लेविकल्स होती है और स्केपुला। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइज्ड ऑफ, एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे बेटा। क्लेविकल, हाँ, स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। ओके गुड, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ और इंक्लूडेड, फर्स्ट इज स्कल, ठीक है, बिहाइंड द स्कल इज वर्टिबल कॉलम, दिस रन on a long axis, ठीक है, and ventrally there is sternum that is also included in the axial skeleton, and vertebral column and sternum, they are attached by the flat elongated bones and they are known as ribs. The ribs are also included in the axial skeleton, ठीक है। Apart from axial skeleton, another skeleton that makes the that form the skeleton of the appendages or limbs, that is known as appendicular skeleton. Okay, so you have studied the bones of the forelimb, means you have studied the appendicular skeleton, means पहला पार्ट पढ़ लिया है, दैट इज फोरलिम्ब, ठीक है। तो एक्सियल में आपने थोड़ा स्कल पढ़ लिया है, उसके अलावा वर्टिबल कॉलम में कुछ पढ़ा था, टिपिकल रिब वगैरह, एनीथिंग मैडम ने पढ़ा? नहीं, ओके। तो now we start with the another part of the axial skeleton after skull. Skull आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो vertebral column, ठीक है। तो vertebral column actually that forms the dorsal part of the body and present in a long axis or median axis, ठीक है, and made up of irregular bones, and these bones are the vertebrae, ठीक है। तो that is made up of वर्टिब्रे, ठीक है। तो वर्टिब्रे जो है दैट आर इंक्लूडेड इन द इरेगुलर बोन। ओके, तो हियर वन डायग्राम इज देयर, विथ दैट आई वांट टू शो यू। This is a very preliminary diagram, okay, showing the vertebral column. So showing the skeleton of the ox, ठीक है, और cow we can say, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे this skeleton is made up of skull, ठीक है, then this whole is the vertebral column, is complete is the यहाँ से इधर तक जाएगा पीछे, up to the tail. This whole is included in the vertebral column, ठीक है। अच्छा, अपने यहाँ पे जो we are having so many skeleton in our department, ठीक है। आप आओगे तो देखोगे we are having the skeleton of ox, horse, dog, fowl, monkey, everything, ठीक है। तो अभी तो आपको नहीं दिखा पा रहे, अदरवाइज अगर आप यहाँ रहते तो आप सारे skeleton देखते और उससे पढ़ते, ठीक है। But here we are having the photo or pic of that skeleton, ठीक है। तो this starting from the skull, this whole vertebral column that forms the
axial part of the axial skeleton. ठीक है, अदर पोर्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द स्टर्नम. दिस इज स्टर्नम, जो वेंट्रल साइड में जा रहा है, दिस इज sternum, and elongated bones which attach the sternum to the vertebral column. ठीक है, forming the this rib cage. ठीक है, और thoracic cavity known as ribs. तो axial skeleton में क्या क्या आ जाएगा? Axial skeleton includes the skull. ठीक है, then whole vertebral column. अच्छा, the vertebral column actually the number of cervical vertebrae, ठीक है, is fixed in case of all the mammals. ठीक है, however in fowl the number of cervical vertebrae it doubles, means it is approximately it is 14 in number, not approximately. ठीक है, अदरवाइज इन ऑल द मैमल्स आपने पढ़ा होगा, चाहे वो जिराफ हो चाहे छोटा मैमल हो, दैट हैज फिक्स्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड दोज आर 7 इन नंबर. ठीक है, तो आपको पता है सर्वाइकल वर्टिब्रे इन ऑल द मैमल्स, ठीक है, नंबर वाइज 7 इन नंबर. ओके, तो चाहे वो ऑक्स लोगे, हॉर्स लोगे एंड दिस डॉग, इन एवरी मैमल वी आर हैविंग 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे. बट दिस थोरैसिक जो है, थोरैसिक वर्टिब्रे का जो नंबर है दैट वेरीज. ठीक है, वो नंबर आपको बता देंगे. लाइक इन ऑक्स इट इज 13 इन नंबर, वेयर इज इन हॉर्स, बिकॉज हॉर्स इज रेसिंग एनिमल, द थोरैसिक कैविटी ऑफ द हॉर्स इज वेरी लार्ज कैपेसियस. ठीक है, बिकॉज रेसिंग के लिए ज्यादा लंग भी बड़े हैं उनके. ठीक है, तो इन केस ऑफ हॉर्स 18 thoracic vertebrae are present. ठीक है, एंड दिस लंबार वर्टिब्रे आर 6 इन नंबर. अभी मैं केवल ऑक्स का बता दूं चाहे तो. ठीक है, तो दिस लंबार वर्टिब्रे आर 6 इन नंबर. ठीक है, देन कॉर्डल वर्टिब्रे का नंबर वेरी करता है, 15 to 25 वेरी करेगा. ठीक है, एंड अदर डिफरेंट स्पीशीज. ओके, तो अभी नंबर आपको एक चार्ट आपके पास घोष की बुक में होगा. ठीक है, तो आप उसको लर्न कर लेना, पूरा का पूरा नंबर का जो टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है. यू मस्ट नो द नंबर ऑफ ऑल द सेगमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन ऑल द स्पीशीज विच वी स्टडीड इन. ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उसमें. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सर्वाइकल वर्टिब्रे. ठीक है, 6 इन नंबर. अभी ऑक्स का बस बता, सॉरी 7 इन नंबर इन ऑक्स. ठीक है, देन थोरैसिक वर्टिब्रे इन केस ऑफ ऑक्स आर 13 इन नंबर. कितने होते हैं? 13 होते थोरैसिक वर्टिब्रे. ठीक है, देन लंबार वर्टिब्रे आर 6 इन नंबर इन केस ऑफ ऑक्स. ठीक, नंबर और भी जब अपन डिफरेंशियल फीचर पढ़ेंगे तब भी बता दूंगी. तो 6 लंबार वर्टिब्रे आर प्रेजेंट. ठीक है, सेक्रम कंपोज्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 5 सेगमेंट्स. ठीक है, तो इट इज अ सिंगल बोनी मास. ठीक है, ऑल्दो इन एम्ब्रियोलॉजी स्टेट और इन द प्रीनेटल स्टेज दीज सेगमेंट्स आर सेपरेट. ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 सेगमेंट फ्यूज हुए बिकॉज देयर ऑसिफिकेशन सेंटर जो है दोज आर डिफरेंट. ठीक है, एंड दिस सैक्रम, दिस सैक्रम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 sacral vertebrae. Okay, and lastly the coxal vertebrae. Number of coxal vertebrae varies 15 to 25. मैं in general आपको बता दे रही हूँ. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. रिगार्डिंग द पोजिशन, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन और इन द सर्वाइकल रीजन. ठीक है, देन thoracic vertebrae are present in the thorax region, or these vertebrae they form the dorsal wall of the thoracic cavity. ठीक है, तो जो thoracic cavity में जो vertebrae होंगे are known as thoracic vertebrae. नंबर कितना है ऑक्स के केस में? 13 है. ठीक है, लंबार vertebrae are present in form the dorsal part of the abdominal cavity. ठीक है, लंबार रीजन बना रहे हैं और these lumbar vertebrae they form the dorsal wall of the abdominal cavity. ठीक है, तो thoracic vertebrae क्या बनाएंगे? dorsal part of the thoracic cavity. cervical बनाएंगे neck region का bony base, और lumbar बनाएंगे dorsal part of the this abdominal cavity, और lumbar region भी कह सकते हैं. ये आपने LPM में अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है, then after this region, ठीक है, अच्छा ये thoracic वाले इस रीजन को विदर रीजन कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ LPM में. द रीजन इज नोन एज विदर रीजन. इसको बोलेंगे बैक रीजन, लंबार रीजन को. ठीक है, और उसके बाद इधर ये वाला आ जाएगा, सॉरी लॉइन और क्रूप रीजन आ जाएगा ये वाला. ठीक है, तो दिस सैक्रम जो है इज मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रे. ओके, देन लास्टली
अच्छा, दिस सैक्रम इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द पेल्विक कैविटी. क्या बनाएगा? सैक्रम कहाँ होगा? पेल्विक कैविटी के ऊपर होगा. Hence it forms the roof of the pelvic cavity. And this coxal vertebrae or caudal vertebrae, they form the bony base of the tail. Okay, and as these vertebrae, they reach up to the termination of this tail, the different characteristic feature they reduced. ठीक है, धीरे धीरे सारे फीचर्स रिड्यूस होते जाएंगे. एंड एट द एंड the vertebrae are present only in the form of small bony cylindrical piece. छोटा सा पीस रहेगा, बाकी सारे प्रोसेस कुछ नहीं रहेंगे टर्मिनल पोर्शन में किसके? ऑफ द कॉक्सियल वर्टिब्रे. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट विद द दिस सर्वाइकल वर्टिब्रे. क्या होते हैं? ठीक है, टिपिकल मींस द वर्टिब्रे व्हिच आर हैविंग द टिपिकल फीचर्स, ठीक है, व्हिच इज कन्फाइंड टू द वर्टिब्रे के जो कॉमन फीचर्स होने चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इसको अपन वर्टिब्रा कहे या वर्टिब्रे कहे, तो वो जो फीचर्स है जिस वर्टिब्रा में होगी, तो दैट इज नोन एज टिपिकल वर्टिब्रा. क्लियर? तो टिपिकल वर्टिब्रा में क्या क्या होना चाहिए कि जो एक वर्टिब्रे की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिफरेंट रीजन्स. अच्छा, tell me the cervical vertebrae are present in which region? Anybody? Neck region. Neck region. Okay, thoracic vertebrae? Thorax region. Thorax region. Lumbar vertebrae? Abdominal region. Abdominal region. हाँ, Abdominal. उसका रूफ बनाएगी. Sacrum? Roof of pelvic cavity. Roof of pelvic cavity. And caudal vertebrae or coxal vertebrae? Bony base. Bony base of tail. बेस ऑफ द टेल. ओके, अब क्योंकि देखो ये पूरा वर्टिबल कॉलम है, मैं टिपिकल वर्टिब्रे की बात करी, मतलब कोई एक टिपिकल वर्टिब्रा होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल बताना चाहूंगी. हियर दिस इज द नेक रीजन. ठीक है, एज पर एडाप्टेशन ऑफ द बॉडी और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, द मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द टिपिकल वर्टिब्रे. ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ रीजन पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस जगह की, नेक रीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, थोरैसिक वर्टिब्रे की क्या रिक्वायरमेंट है, लंबार की क्या रिक्वायरमेंट है, तो एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है, बॉडी ने अपने आप को इस तरीके से डाला है, हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंजेस करती गई और उस हिसाब से फीचर्स है. ओके, तो सिमिलरली हियर ऑल्सो एक्सियल स्केलेटन में मोटा मोटा फीचर बता दे रही हूँ. दिस इज दिस सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फीचर होने चाहिए? बिकॉज एज यू नो, नेक जो है इन कंपैरिजन टू बॉडी काफी थिन है. ठीक है, नेक वाला एरिया जो देखोगे आप, तो थिनर देन दी कंप्लीट बॉडी. तो यहाँ पे बिकॉज नेक इज थिन, अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस इफ दे डेवलप मोर, अगर वो डेवलप बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो नेक तो बहुत चौड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो दस देयर इज नो नीड ऑफ वेल डेवलप्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस विच इंक्लाइन लेटरली. ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि नेक रीजन है, अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस बिल्कुल साइड बाय साइड चलेंगे, लेटरली जाएंगे, तो दैट लीड्स टू द दिस नेक को जो बहुत मोटा बना देंगे. ठीक है, तो हेंस देयर इज नीड ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस नेक रीजन में जाएंगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ their inclination towards the lateral side, they run anteriorly and posteriorly. अगर आगे पीछे की तरफ बाइफिड हो जाती है वो, ठीक है, और एक आगे जाती है एक पीछे जाती है, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? एक तो नेक चौड़ी नहीं होगी. ठीक है, जो नेक की रिक्वायरमेंट है, नेक को चौड़ा नहीं होना है ना, तो एक तो ट्रांसवर्स प्रोसेस इंस्टेड ऑफ दिस मूविंग या कह सकते हैं डायरेक्टिंग लेटरली, the transverse process they run anteriorly and posteriorly. ये सब मैं आपको फ्यूचर अभी दिखाऊंगी. क्यों? क्योंकि अगर लैटरली जाएगी तो नेक चौड़ी हो जाएगी. सेकंड, एंटीरियर पोस्टीरियर जाने से क्या होगा? द मसल्स ऑफ द नेक रीजन, ठीक है, दे गेट सपोर्ट बिकॉज मसल्स ऑफ द नेक रीजन दे आर ऑल्सो फ्लैटेंड और रोप लाइक होती है, तो वो बिल्कुल इन आगे और पीछे वाली ट्रांसवर्स प्रोसेस में वो एकोमोडेट होते चली जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बता सकते हैं कि नेक रीजन में क्या है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है, देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस टू ओरिएंट लेटरली. ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें होता है क्या नेक रीजन में, कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पहले तो बाइफिड होगी और दूसरा दे रन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग लेटरली. ठीक है,
इसके बाद मैं सीधे लंबार दिखा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये बताया मैंने इसमें सर्वाइकल में, हियर इन द लंबार रीजन, ठीक है, आपको हालांकि डायग्राम में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, these are the transverse process, very large transverse processes are there, and these processes they directed laterally. छह जो ट्रांसवर्स प्रोसेस लंबार वर्टिब्रे, उनकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस बिल्कुल लेटरली जाएगी, जैसे एरोप्लेन में होता है ना साइड में जो उसके विंग्स जाते हैं, सिमिलरली हियर आल्सो लंबार वर्टिब्रे दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज देयर इज नीड. यहाँ पे और कोई बोनी सपोर्ट नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी खाली दिख रही है आपको, ठीक है. तो these transverse process, these well developed transverse processes, they accommodate the large muscles. ये उनको सपोर्ट करने के लिए, काफी जो लार्ज मसल्स जो रहेगी ऊपर से उनको सपोर्ट करने के लिए रहेगी, ठीक है. तो hence in the lumbar region well developed transverse processes are there, and these processes are oriented laterally, ठीक है, साइड बाई साइड जाएगी, ना कि आगे पीछे जैसे इसमें जाती है. यहाँ पे क्योंकि इसको अपना जो स्पेस कैसे जाना है, आगे पीछे करना है, ना कि लैटरली एकोमोडेट करना है, ठीक है. थोड़ा ब्रीफ हो गया आपको, बाकी डिटेल में आपको और बता दूंगी. देन दिस इज द रीजन ऑफ द, आपको दिखाई दे रहा है एरो? करेक्ट. यस मैम. एरो इज विजिबल? यस मैम. अच्छा, क्योंकि बाकी उसमें तो वो 4 साइडेड बनता था ना कर्सर, यहाँ पे एरो दिख रहा है इसलिए पूछ रहे. ओके, तो हियर दिस पार्ट इज द थोरैसिक रीजन, ठीक है. देयर इज वन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्टिब्रे ऑफ द थोरैसिक रीजन, ठीक है. कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्या होना चाहिए उसमें, देख के बताओ. डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाओगे तो केवल हम फीड करेंगे तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है. तो the thoracic vertebrae, they should have one thing, that is the peculiar feature of the thoracic vertebrae. आपको जो दिख रहा है बताइए. मैम रिब्स के लिए फैसिक. गुड, ठीक है. रिब के लिए जो है, बिकॉज रिब्स हैव टू आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रे, तो उनके लिए फेसेट चाहिए, उनके लिए आर्टिकुलर एरिया चाहिए, ठीक है. तो all the thoracic vertebrae, they are having facets for articulation with the head and tubercle of the rib. मतलब वहां जॉइंट बनेगा, ठीक है. रिब हवा में तो नहीं रहेगी, रिब किससे आर्टिकुलेट करेगी? विद द थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है. तो मैं सीधा मैं बता दूंगी तो आप लोग दिमाग नहीं चलाओगे, इसलिए मैं पहले आपको जस्ट ब्रीफिंग कर रही हूँ, उसके बाद एक के बाद एक वर्टिब्रे स्टार्ट करना है, ठीक है. तो लेकिन आपको इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए, खुद से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके खुद पता होने चाहिए, ठीक है. इंस्टेड ऑफ मगिंग, मतलब आप रटने के अलावा आप देख के आपको समझ में जो है. द थोरैसिक वर्टिब्रे मस्ट हैव दिस फेसेट्स मतलब आर्टिकुलर एरिया फॉर आर्टिकुलेशन विद द दिस हेड एंड ट्यूबरकल ऑफ द रिब, ठीक है. बाकी उसका डिटेल अपन थोरैसिक वर्टिब्रे में पढ़ लेंगे. एक और फीचर इज विजिबल हियर इन केस ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे. ध्यान से देखो. डोर्सल स्पाइन्स. हाँ, गुड, ठीक है. डोर्सल स्पाइन, जो सुप्रास्पाइनस प्रोसेस आर वेल डेवलप्ड, ठीक है. सबसे ज्यादा यहाँ आप देखोगे जो हाइट दिखेगी सुप्रास्पाइनस प्रोसेस की in case of thoracic vertebrae. So this is another peculiar feature where the thoracic vertebrae, they have the well defined plate like supraspinous process, ठीक है. तो पहला फीचर हो गया, these vertebrae they have articular area or facets for articulation with the ribs, क्योंकि वो उसकी requirement है, ठीक है. और सेकेंड थिंग हो गया प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड सुप्रास्पाइनस प्रोसेस, क्योंकि वहां भी अपने क्या होगा, मसल जो है वो एकोमोडेट करेगी, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट, अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो लेंथ होती है इन्हीं की होती है थोरैसिक वर्टिब्रे की, ठीक है. पार्शियली धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस होगी. ओके, अब लंबार वर्टिब्रे में भी सुप्रास्पाइनस प्रोसेस होते हैं, बट दे आर प्लेट लाइक, बट हाइट इज लेस, ठीक है. सर्वाइकल में बहुत छोटे होंगे, ठीक है, और सिलिंड्रिकल होंगे, वो आपको दिख नहीं रहे, वो अलग से दिखा दूंगी. देन सैक्रल, दिस सैक्रल रीजन में सैक्रम इज नॉट द सैक्रल वर्टिब्रे आर नॉट सिंगल वन, ठीक है. मींस दे आर फ्यूज्ड सैक्रल मास नोन एज सैक्रम, ठीक है. तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो नीड ऑफ द इंडिविजुअल वर्टिब्रे, बिकॉज जहां भी इंडिविजुअल वर्टिब्रे देयर इज स्लाइट मूवमेंट इज देयर,
ठीक है। इंडिविजुअल वर्टिब्रे के बीच में क्या होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट, आपको पता है इंटरवर्टिबल डिस्क होती है एंड जॉइंट इज देयर, तो स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल ऑल्दो नॉट वेरी वेल, बट ठीक है, बट हियर देयर इज नो नीड इन दिस रीजन, सैक्रल रीजन में नो नीड ऑफ मूवमेंट, मतलब यहाँ से बेंड नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। ये जरूर बेंड हो सकता है एनिमल का, बेंड मतलब थोड़ा सा स्लाइड बेंडिंग इज पॉसिबल, बट यहाँ नहीं हो सकती है, क्यों, बिकॉज दीज आर फ्यूज और नीड भी नहीं है उसकी, ठीक है। एंड दिस वर्टिब्रे में क्या होता है, द ट्रांसवर्स प्रोसेस दे डिमिनिश ग्रेजुअली, बस आगे वाला एक जो ट्रांसवर्स प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ विंग प्रेजेंट होता है, दैट आर्टिकुलेट्स विद द lumbar one, otherwise very reduced transverse processes are there in case of sacral vertebrae, ठीक है। then lastly the last segment is the coxal vertebrae, इसकी नीड क्या होनी चाहिए coxal vertebrae की, आप बताओ। चीजें उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस वगैरह की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, छोटे छोटे होंगे, ठीक है ना। वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लिख लेना, इन द कॉक्सिल वर्टिब्रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ द हीमल आर्च, इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ द कॉक्सिजियल और कॉर्डल वर्टिब्रे, ठीक है, जो और किसी में नहीं मिलेगा, ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉक्सिल वर्टिब्रे, एंड दैट पिक्यूलियर फीचर इज द हीमल आर्च। एक्चुअली हीमल वर्ड किससे इज रिलेटेड विद द हीम, ब्लड। ब्लड, ओके। तो आप पल्स लिया है आपने, आप कर आए नहीं यहाँ पे, तो फ्रॉम वेयर वी टेक द पल्स ऑफ द एनिमल, लार्ज एनिमल में, वेंट्रल कॉक्सियल आर्टरी, मीडियन कॉक्सिल आर्टरी, ठीक है, वेंट्रल कॉक्सिल आर्टरी बोल सकते हैं या मीडियन कॉक्सिल आर्टरी, ठीक है। तो कॉक्सिजियल आर्टरी जो है दैट इज द कंटिन्यूएशन, आपको बताया था मैंने, यहाँ से पूरा एब्डोमिनल एटा जाएगा, वहां से एक बाकी कैरोटिड ट्राइफर्केशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड पढ़ा था ना आपने, मैंने पढ़ाया था एंजियोलॉजी में, याद है कुछ? यस मैम। सॉरी, कैरोटिड ट्राइफर्केशन नहीं, इलियक क्वाड्रिफिकेशन, सॉरी इलियक क्वाड्रिफिकेशन, ओके। तो इलियक क्वाड्रिफिकेशन में एक्सटर्नल इलियक बताया था, इंटरनल इलियक बताया था, ठीक है, मींस 4 ब्रांचेस है देयर, मैं मेरे मुंह से कैरोटिड निकल गया, सॉरी, ठीक है। तो हियर इलियक क्वाड्रिफिकेशन इज देयर दैट लीड्स टू द 4 ब्रांचेस, तो एक एक्सटर्नल इलियक लिम्ब में चली जाएगी, इंटरनल इलियक पेल्विक कैविटी में चली जाएगी, ओके। बट वन थिन ब्रांच दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एब्डोमिनल एटा दैट रन्स बिलो द दिस सैक्रम, सैक्रम के नीचे भी जाती है, ठीक है। तो उसमें आप वैस्कुलर ग्रूव बोलोगे तो सैक्रम पढ़ोगे, देन दिस आर्टरी इट रन्स बिलो द दिस कॉक्सिल वर्टिब्रे, ठीक है। तो यहाँ जाने जाती तो वेंट्रल साइड ऑफ द दिस कॉक्सिल वर्टिब्रे आर हैविंग स्मॉल स्मॉल ट्यूबरकल, छोटे छोटे 2 साइड में ट्यूबरकल होंगे और उनके बीच में एक पैसेज बन जाता है, ठीक है। तो दैट पैसेज एकोमोडेट्स द कॉक्सिजियल आर्टरीज, ठीक है, वेंट्रल कॉक्सिल आर्टरी और मीडियन कॉक्सिल आर्टरी, ठीक है। तो जो बाजू में छोटे छोटे स्मॉल ट्यूबरकल्स आर देयर एंड दोस ट्यूबरकल्स आर नोन एज हीमल आर्चेस, ठीक है। तो दीज हीमल आर्चेस दे अकोमोडेट द ब्लड वेसल, स्मॉल ट्यूबरकल होंगे ऑन ईच साइड ऑफ द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द कॉक्सियल वर्टिब्रे, ठीक है। तो दोनों साइड में ट्यूबरकल होगे तो बीच में स्पेस हो गया ग्रूव टाइप का, ऐसे सारे में हो जाएगा तो एक लंबा सा एरिया बनता जाएगा लंबाई में, ठीक है। एंड दैट accommodates the ventral और median coccygeal artery, ठीक है। तो the one important peculiar feature of the coxal vertebrae क्या होंगे बताओ, presence of the हीमल आर्क, हाँ हीमल आर्चेस, ठीक है, बिकॉज दीज हीमल आर्चेस आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड, वेंट्रल एस्पेक्ट में होगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ आओगे या इसी में मैं दिखा दूंगी आपको, तो in brief the things are clear about the different segments of the vertebral column, ठीक है। now I would like just briefing करी ताकि आपके दिमाग में पिक्चर है कि कैसे दिखता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ होने चाहिए, यहाँ होंगे, ठीक है। आपको थोरैसिक में दिख रहे रिब से अटैच्ड है, लंबार में ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रही है, किस रीजन में लंबार ये दिखाई दे रहा है। सिमिलरली दिस सैक्रल वर्टिब्रे कहाँ होंगे, और सैक्रम इज प्रेजेंट दैट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द pelvic cavity and coccygeal or caudal vertebrae, okay।
now एक मिनट I'm visible to you. This lab is visible. पीछे बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके तो टिपिकल ये दिख रहा है क्लियर लिखा हुआ Yes, ma'am. typical vertebra. So there are some features of the typical vertebra. Okay. Board is visible. Ankit, दिख रहा है board? यस मैम। Okay, so there are three main features of the typical vertebra. First is presence of the centrum. Second thing is the arch. Presence of the body or centrum. Centrum is also known as body. ठीक है. Second thing, the presence of the arch, and third thing is the presence of the processes. These things, three things are important. ठीक है. Are the characteristic feature of any typical vertebra. ठीक है. तीन चीज क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला centrum, presence of the centrum. Centrum means body. क्या होना चाहिए? Presence of the centrum or body. Second thing, there is presence of the arch. What is arch? I will let you know later on. ठीक है. So second is presence of the arch. Third one is presence of the processes. These processes includes one is transverse processes. Second is articular processes. दिख रहा है आर्टिकुलर प्रोसेस लिखा हुआ? विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And transverse process, and third one is spinous process. So spinous process is includes spinous process में dorsal spine and ventral spine आ जाएंगे. Supraspinous process and infraspinous. Means spinous process includes the supraspinous process and infraspinous. ठीक है. तो these are the typical characteristic features which are present in the typical vertebrae. Clear हो गया? तो typical vertebrae में क्या क्या होना चाहिए? Presence of the centrum or body. Second thing, presence of the arch, and third one is the presence of the processes. And these processes includes the transverse processes, then articular processes, and third one is the spinous. Includes the supraspinous process and infraspinous. Means dorsal spine and ventral spine. ठीक है. तो थोड़ा बहुत they are necessary, or these are the requirement of the typical vertebrae. ठीक है. Okay. This vertebra is visible to you? मुझे क्योंकि दिख नहीं रहा कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं. Is this visible? थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और ठीक एक्चुअली। है. नहीं मैम, कैमरा को नीचे है। अब Yes, हाँ, ma'am. ma'am. क्लियर है? Is it visible? लाइट Yes, कहाँ है yes, क्या? यस मैम, दिख रहा है। लाइट, एक मिनट, लाइट को बोल.
योर वॉइस ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है मैम। करके रखा, ओके। तो दिस इज द लंबार वर्टिब्रा एक्चुअली, बट इट रिप्रेजेंट्स द टिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल वर्टिब्रा के जो फीचर्स होने चाहिए मैक्सिमम इसमें है, दस आई एम शोइंग दिस वर्टिब्रा, ठीक है। तो दिस इज द लंबार वर्टिब्रा, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आई टोल्ड यू, द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रम, दिस वन इज द सेंट्रम, ये जो दिखाई दे रहा है मैंने हाथ में जो पकड़ा हुआ है उंगलियों से, दिस होल इज द सेंट्रम, ठीक है। और बॉडी सेंट्रम ऑफ द दिस टिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है। तो व्हाट इज सेंट्रम, दिस इज द सॉलिड बोनी मास, कैसा है ये, दिस इज ए सॉलिड बोनी मास, ठीक है, मोर और लेस सिलिंड्रिकल। अगर आप यहां से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, मोर और लेस सिलिंड्रिकल इन शेप, यहां से यहां तक ही गया, नीचे इतना पूरा आया, तो दिस इज मोर और लेस सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। तो व्हाट इज सेंट्रम, सेंट्रम इज ए सॉलिड बोनी मास, ठीक है, मोर और लेस सिलिंड्रिकल इन शेप एंड इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द, ये सेंट्रम है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द वर्टिबल रिंग, ये वर्टिबल रिंग है, ये जो कैनाल टाइप का दिख रहा है ना, ये रिंग टाइप का गोल, ठीक है, एक फोरामेन टाइप का दिख रहा है। तो इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द, फ्लोर मतलब ये आ गया पोर्शन, तो दिस सेंट्रम और बॉडी फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द वर्टिबल रिंग। क्लियर हो गया, व्हाट इज सेंट्रम, कौन बताएगा, जानवी। Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, centrum is the cylindrical body of the vertebra, and it forms the floor of the neural canal. Fine. फ्लोर ऑफ द, ठीक है, न्यूरल कैनाल और वर्टिबल कैनाल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मास है, इट इज द सॉलिड बोनी मास, मोर और लेस सिलिंड्रिकल, ओके, एंड इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द न्यूरल कैनाल या न्यूरल रिंग कह सकते हैं, कैनाल नहीं बोलेंगे, न्यूरल रिंग और वर्टिबल रिंग। कैनाल जब पूरी वर्टिब्रे चले जाएंगे खूब सारे, देन नोन एज कैनाल, ओके। तो ये हो गया रिगार्डिंग बॉडी। अब इसको देख के हमको पहचानना है कि दिस इज एंटीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर पोर्शन। तो द बॉडी हैज, ये वाला जो है दिस द पोर्शन विच इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, दिस वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो दिस सिलिंड्रिकल मास और बॉडी, ठीक है, हैज cranially convexity, means the cranial extremity is, yeah, cranial end is always convex, ठीक है, and this is the caudal end, and the caudal end जो है that is concave। इससे हम पहचान सकते हैं कि where this is facing, ये anterior portion है, ये इसका posterior है, why, because this the body की जो extremity और end है, ठीक है, तो anterior extremity और end of the body is always convex, whereas the posterior end, जो posterior end ये पीछे वाला है, that is always concave, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। the anterior convex extremity और end, ठीक है, articulates with the concave posterior end of the preceding vertebra, मतलब इसके आगे जो वर्टिब्रा होगा, ठीक है, उसकी कॉन्केविटी होगी, ये कॉन्वेक्स है तो वो क्या होगा, कॉन्केव होगा, ओके। तो दिस कॉन्वेक्स एंड of the body or centrum, it articulates with the concave end of the, ठीक है, body of the preceding मतलब इसके पहले वाले वर्टिब्रे, ठीक है, क्योंकि ये अकेला तो नहीं रहता है, अभी भी वर्टिब्रा जो रहेगा अकेला नहीं रहेगा, सीरीज में चलते हैं ना, आपने इरेगुलर बोन में पढ़ा होगा, इरेगुलर बोन्स, ठीक है, लाइक वर्टिब्रे दे फॉर्म द चेन सीरीज ऑफ दिस to form the chain, ठीक है, they are arranged in series to form a chain। तो इसके आगे रहेगा दूसरी preceding vertebra, ठीक है। तो ये convexity that articulates with the concavity of the preceding। कोई confusion regarding centrum और body of the, इसमें देखो दो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब अपन when we hold the vertebra, ठीक है, we must know the position कि ये आगे वाला है कि पीछे, क्योंकि आगे पीछे गड़बड़ हुआ तो सारे फीचर्स उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, क्योंकि जब हम आगे के फीचर्स बोलेंगे ऊपर के कि क्रेनियली दिस इज प्रेजेंट, कॉर्डली, तो क्रेनियल कॉर्डली बदल गया तो एवरीथिंग गेट्स चेंज, ठीक है। तो ऑलवेज कॉन्वेक्सिटी ऐसी है, अगर मैंने ऐसे पकड़ के आपको बताना शुरू कर दिया और पूरे फीचर बता दिए तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वी शुड प्रॉपरली होल्ड द बोन, वी शुड नो व्हाट इज विच वन इज दिस एंटीरियर पोर्शन, विच इज द कॉर्डल वन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो एंटीरियर इज ऑलवेज कॉन्वेक्स एंड पोस्टीरियर वन इज ऑलवेज कॉनकेव. सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया था कि द सेंट्रम जो है इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द दिस न्यूरल रिंग और वर्टिबल रिंग. ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है. तो ये मतलब वेंट्रल एस्पेक्ट में सबसे नीचे सेंटर में ऑल दिस थिंग्स दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द दिस सॉलिड मास. जो भी चीज बनी हुई है ये ऊपर, ये सब किसके ऊपर है? दिस सेंट्रम के ऊपर. और गलती से पढ़ने में हम लोग ऐसे पकड़ लिया, मैंने मान लिया, तो एवरीथिंग गेट्स रिवर्ट्स. जब मैं कुछ पढ़ाऊंगी तो ये नीचे आ गया सब कुछ. ठीक है, तो भी बस होल्ड द बोन इन प्रॉपर पोजिशन. प्रॉपर पोजिशन में कब पकड़ेंगे? जब हमको पता होगा. ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ दिस. अगर ऐसे देखोगे तो ये एंटीरियर है एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पार्ट. दिस वन इज द एंटीरियर, मतलब इसके आगे और वर्टिबल कॉलम का पोर्शन चलेगा, इसके पीछे भी चलेगा. ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द दिस बॉडी. तो बॉडी को एंटीरियर करेंगे तो पूरा वर्टिब्रा भी एंटीरियर चला जाएगा. ठीक है, तो हियर देयर इज कॉन्वेक्सिटी और पीछे की आप तरफ आप देखोगे कॉन्केविटी. ठीक है, एंड इन बिटवीन दीज टू, ठीक है, इसके आगे कोई रहेगा तो बिटवीन दी सेंट्रम और बॉडी ऑफ द टू एडजेसेंट वर्टिब्रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ डैश. कौन बताएगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क. गुड. ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द इंटरवर्टिबल डिस्क. आपने बहुत बार सुना होगा, प्रोलैप्स ऑफ डिस्क हो गया है, डिस्क है ना, स्लिप डिस्क हो गया है, बहुत सारे आजकल आपने बहुत सुना. व्हाट इज दैट? दैट इज द इंटरवर्टिबल डिस्क. ठीक है, उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड का जो रेमिनेंट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. पता है किसी को? Pulposus. हाँ, न्यूक्लियस पल्पोसस. ओके, तो इंटरवर्टिबल डिस्क इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कार्टिलेज? White fibrous. व्हाइट फाइब्रस. ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. मेनिस्कस हो गया या मेनिस्काई हो गया, इंटरवर्टिबल डिस्क हो गया, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ फाइब्रस. फाइब्रो बोल सकते हैं या फाइब्रस कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज. ओके, तो इज इट विजिबल ना? ठीक है, तो ये क्रेनियल एंड होगा, ये कॉर्डल होगा. तो बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे और सेंट्रम ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ डिस्क. ठीक है, दैट डिस्क इज फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क नोन एज इंटरवर्टिबल डिस्क. ठीक है, दैट फॉर्म्स अ कुशन. क्योंकि अगर ये बीच में अगर इंटरवर्टिबल डिस्क नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? आपस में बोन बार बार घिस के खराब हो जाएगी. ओके, तो यहाँ भी एक इंटरवर्टिबल डिस्क होनी चाहिए और दूसरी इधर भी है. ठीक है, तो रिगार्डिंग सेंट्रम आपको क्लियर हो गया? एनीबॉडी, एनी डाउट? क्योंकि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कितना दिख रहा है. जानवी क्लियर है? Yes, ma'am. इसलिए Yes, ma'am. तो समझाए, दिखा क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट रिगार्डिंग सेंट्रम? वेरी इजी, बहुत इजी पार्ट था ये वैसे. आज अटेंडेंस लेना है मेरे को. ठीक है, अभी लास्ट में अटेंडेंस लूंगी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? अच्छा, तो पहला फीचर हो गया. दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रम और बॉडी. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब उसके बाद आएगा आर्च. आर्च एक्चुअली ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज कर्व्ड एरिया. ठीक है, तो इसका हाफ पोर्शन, अगर इतने को छुपा दो तो दिस हाफ पोर्शन जो है ये कर्व्ड एरिया, ये सबको छोड़ दो, ऊपर जो भी प्रोसेस है उनको छोड़ दो. दिस प्लेट लाइक कर्व दिख रहा है, दैट इज नोन एज आर्च. क्लियर है? राइट या लेफ्ट की बात करेंगे तो दिस इज राइट आर्च. पूरा का पूरा ये राइट आर्च जा रहा है. सेकंड इज द दिस इज लेफ्ट आर्च. ये इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ये पूरा ऊपर का छोड़ दो, ये जो राउंड दिख रहा है ना, ये वर्टिबल रिंग जो बन रहा है, तो इसका हाफ पोर्शन देखो. दिस इज द राइट आर्च एंड दिस वन इज द लेफ्ट आर्च. ओके, देन ईच आर्च मीन्स राइट और लेफ्ट की बात करेंगे, कंपोज ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, वन इज पेडिकल. दिस थिक पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज अटैच्ड टू द दिस सेंट्रम. ये वाला जो थिक दिख रहा है दिस इज नोन एज पेडिकल. पेडिकल मीन्स व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ पेडिकल? पेडिकल मीन्स बॉटनी में पढ़ा है ना पेडिकल. Yes, ma'am. In leaf we have pedicle by which we attach leaf are attached to the. Another name for pedicle is? Lobes. Lobe. और सोचो, किसी को याद आ रहा है? पेडिकल अटैचमेंट काम करती है. प्रखर? स्टॉक. गुड. ठीक है, स्टॉक है. ये क्या है?
अटैचमेंट के लिए काम करता है। तो दिस वन आर्च हैज टू पार्ट्स, वन इज थिक पोर्शन that attach with the centrum, ठीक है। तो दिस थिक पार्ट इज नोन एज पेडिकल, ठीक है। किससे अटैच रहता है? विद द सेंट्रम। एंड उसके बाद ऊपर एक थिन पोर्शन जा रहा है, दिस वन, ठीक है, दैट फॉर्म्स द हाफ पार्ट ऑफ द डोर्सल वॉल, ठीक है, दिस वन। तो दैट इज नोन एज लैमिना। क्या बोलेंगे उसको? लैमिना। बिकॉज अगर आप यहाँ से देखोगे 3D तो ये लैमिना है पूरा का पूरा, पूरा लेंगे अपन, ठीक है। तो दिस इज पेडिकल एंड दिस इज लैमिना, ठीक है। तो वन आर्च इज कंप्राइज्ड ऑफ, और आर्क कह सकते हैं, वन आर्क इज कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स। वन इज स्टॉक, जो स्टॉक क्या करेगा? दैट गिव्स अटैचमेंट टू द दिस आर्च टू द दिस बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज पेडिकल वन पार्ट, another is lamina, clear, ठीक है। Then both sides arches they unite to form the complete vertebral ring or neural ring. ये क्लियर हुआ जानवी? Any confusion regarding this? नहीं तो फिर से बताती हूँ, क्योंकि इसमें आपको पूरा दिख तो रहा है वैसे। अंकित, यस मैम, नहीं समझ में आया इसमें? आ गया। पक्का? किस लिए? मैम पेडिकल तो बताना है। पेडिकल। देखो तुमको मैं इधर से ये चौक से बताऊंगी। तो दिस होल इज आर्च, ये पूरा क्या, इसको हटा दो, ये नहीं देखो, ठीक है। ये एक लाइन जा रही है, दिस होल इज आर्च, ठीक है। तो दिस पोर्शन जो थिक वाला है, ये वाला जो कॉन्केव है, ये दिस वन इज नोन एज पेडिकल, ठीक है। अभी इधर से तुमको दिख रहा है, बट ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ठीक है। आपको ये इधर एंटीरियर दिख रहा है, बट दिस होल इज पेडिकल, ठीक है। अगर हम ट्रांसवर्स प्रोसेस को काट दे, बाकी प्रोसेस को काट दे, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पेडिकल, ठीक है। इनको हटा दो, इनको हटाने के बाद जो दिस इज कॉल्ड एज पेडिकल, थिक पार्ट पूरा पीछे तक जा रहा है, ओके। तो दिस इज नोन एज पेडिकल, ठीक है। एंड थिन पार्ट ये जो दिख रहा है पतला सा, ये पूरा का पूरा, ठीक है, दैट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द वर्टिबल रिंग, ये वाला पतला, ये जो दिखाई इधर मेरी उंगली जहां पे है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लैमिना, ठीक है। ये पूरा लैमिना है, यहां से लेके ये पूरा, एंड ये पूरा उसका जो है, ठीक है। तो इफ वी सी इन द डायग्राम, suppose we see from the anterior part, anteriorly this is body, ठीक है, arising from the body, this is known as pedicle, this thick part is known as pedicle, क्या है? ये पेडिकल है, ठीक। और उसके बाद पतला सा जो ये पूरा पीछे तक जाएगा, ठीक है, दिस इज नोन एज लैमिना। तो कंप्लीट क्या है? वन आर्च है, वन आर्च कंप्राइज्ड ऑफ पेडिकल एंड लैमिना, क्लियर हुआ? फिर दूसरे साइड से आएगी, दिस इज पेडिकल एंड लैमिना, तो दैट फॉर्म्स द कंप्लीट वर्टिबल रिंग। तो ये राइट आर्च हो गया, ये लेफ्ट हो गया मान लो, तो दे यूनाइट इन अ मिड लाइन, ठीक है, टू फॉर्म अ कंप्लीट रिंग, ठीक है। तो ये आधी आर्च हो गई, ये आधी हो गई, क्लियर हुआ? एंड सिंगल आर्च इज मेड अप ऑफ पेडिकल एंड lamina, right, okay, in midline to form a complete vertebral ring or complete neural ring. इसमें किसी को कंफ्यूजन आप बताओ? नहीं है? यादव? नो मैम, क्लियर। नहीं है ना, ठीक है। देन आप देखोगे दिस पेडिकल को, देखोगे दिस इज नॉट स्ट्रेट, यहाँ पे नॉच दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? देयर इज नॉच लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्केविटी दिख रही है, इज इट क्लियर? देयर इज कॉन्केविटी, यस मैम। ठीक है। व्हाई दिस इज प्रेजेंट, ठीक है, दिस व्हाई, व्हाट इज द दिस सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्केविटी? ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, क्योंकि इसके आगे दूसरा वर्टिब्रा है, तो वन कॉन्केविटी आएगी और दूसरे वर्टिब्रे की ये कॉन्केविटी आएगी, आगे वाले की समझो, ठीक है। तो यहाँ से क्या, दिस टू यूनाइट टू फॉर्म अ कंप्लीट फोरामेन लाइक स्ट्रक्चर,
दैट इज नोन एज इंटर, क्या बोलेंगे उसको, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। गुड, ठीक है। तो इंटरवर्टिबल फोरामेन बन जाएगा बिकॉज कॉन्केविटी ऑफ द दिस पेडिकल, ठीक है। इसके आगे अनदर वर्टिब्रा इज प्रेजेंट, उसके इधर कॉर्डल साइड में भी है, क्रेनियल में भी है, ठीक है। तो दे यूनाइट टू फॉर्म अ कंप्लीट स्पेस और रिंग, एंड दैट रिंग गिव्स पैसेज टू द this blood vessel as well as the nerves. So nerves, spinal nerves, they come out from this area, ठीक है। तो they unite, ठीक है। तो pedicles of the adjacent vertebrae they unite to form a, unite मतलब कैसे करेंगे, space leave करेंगे to form a ring like structure, and that ring is known as, or that foramen is known as intervertebral foramen, and that foramen gives passage to the nerves and blood vessels. Is it clear? ठीक है। तो इसलिए इसका ये नॉच है, ये जो है पेडिकल है, ये सीधा नहीं है, इट इज कर्व्ड और नॉच्ड है। व्हाई? टू फॉर्म द फोरामेन विद द एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है। तभी एक फोरामेन टाइप का बनेगा, जब साथ में सीधे सीधे चलते जाएंगे तो फोरामेन बनते जाएंगे, एंड दीज फोरामेन दे गिव पैसेज टू द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इतना क्लियर हुआ रिगार्डिंग पेडिकल? तो आप बताओगे दिस आर्च इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द dorsal aspect of the centrum or body, ठीक है। each arch is comprised of two things, one is pedicle is thick, ठीक है, and attached to the body of the this vertebra, ठीक है, and this lamina is present dorsally and is thin part, ठीक है, that forms the roof of the this vertebral canal या vertebral ring, ठीक है। तो each side both side arches they unite to form a complete ring. That ring is known as vertebral ring or this spinal or neural ring, ठीक है। तो रिंग का फॉर्मेशन किससे होता है? बाय द प्रेजेंस ऑफ द पेडिकल एंड लैमिना, ठीक है। या कह सकते हैं बोथ साइड्स आर्चेस दे यूनाइट, ठीक है। यहाँ जाके यूनाइट हो गई, इस मिड लाइन में यूनाइट हो गई, ये लैमिना ये पेडिकल, ये लैमिना ये पेडिकल। तो इस तरीके से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट रिंग और फोरामेन, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग वर्टिब्रल रिंग, ठीक है। तो सेंट्रम हो गया पहली चीज, दूसरा क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ द रिंग, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बताया था? थर्ड फीचर इज, देखो प्रोसेसेस, ठीक है। तो हियर यू कैन सी सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर, ठीक है। सबसे पहले अपन ऊपर वाली देख लेते, दिस प्रोसेस, ये वाली, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? प्लेट लाइक प्रोसेस को, ये वाली स्पाइनस प्रोसेस, सुप्रास्पाइनस प्रोसेस और डॉर्सल स्पाइन, ठीक है। दिस इज नोन एज सुप्रास्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो सुप्रास्पाइनस प्रोसेस इन सम केसेस मे बी बाइफिड, किसी फीचर में आप देखोगे समटाइम्स दे बाइफिड, ठीक है, दे आर, और शेप वाइज देखेंगे दे मे बी प्लेट लाइक, यहाँ पे प्लेट जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। सुप्रास्पाइनस प्रोसेस कैसे दिख रही है? दिस इज प्लेट लाइक। ये पोजीशन सही है बट जो मैंने होल्ड किया है कंप्लीट विजिबल है? यस ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है? यस मैम, दिख रहा है सर। तो दिस इज प्लेट लाइक प्रोसेस। तो दिस में भी, ये तो केवल अपन लंबार की बात कर रहे हो, ओके, एग्जांपल है। तो दिस में भी सिलिंड्रिकल, किसी में आपको दिखाई देगी सिलिंड्रिकल शेप होगी, कहीं प्लेट लाइक होगी, कहीं हाईली डेवलप्ड प्लेट लाइक होगी, लाइक इन thoracic vertebrae, ठीक है। तो दिस इज supraspinous process. In some cases it is only reduced in the form of tubercle, ठीक है। जैसे कि आप एटलस एक्सिस में पढ़ोगे, एटलस में पर्टिकुलरली बिल्कुल ट्यूबरकल जैसे रहती है, स्मॉल वन, ठीक है। तो वन प्रोसेस इज सुप्रास्पाइनस प्रोसेस, और नीचे की तरफ आ जाएगी दैट इज इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस। तो यहाँ इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस बहुत डेवलप नहीं, ओनली इन द फॉर्म ऑफ लाइन, ये दिख रही है। तो दिस इज इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस में आपने पहले देख लिया सुप्रास्पाइनस प्रोसेस एंड इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस, ओके। देन नेक्स्ट, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा, ये क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये कौन सा वर्टिब्रा को जो मैंने पकड़ा हुआ है आपको पहले बताया था? लंबार, गुड, ठीक है। तो व्हाई? बिकॉज इन द लंबार वर्टिब्रे द ट्रांसवर्स प्रोसेस आर ओरिएंटेड लेटरली एंड वेल डेवलप्ड। देखो काफी बड़ी है, ठीक है, वेरी वेल डेवलप्ड। हमारे यहाँ जो अटेंडेंट थे बहुत पुराने, ठीक है, उनको अगर हम कहते थे जहाज लेके आओ तो क्लियरली ले आते थे, बिकॉज ही नोज कि ये जहाज है, ओके। तो वेल डेवलप्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस आर देयर, ठीक है।
तो अपन अभी नॉट स्टडिंग दिस lumbar. Another type of process are transverse processes. और these process they are also modified like in case of cervical. ठीक है, cervical में आप देखोगे बहुत अलग फीचर दिखाई देगा आपको, इसमें नहीं दिखाता एक्चुअली, 3rd 4th 5th है, बाद में दिखाना ही आपको वैसे, ठीक है। तो इनमें आप देखोगे ये these two are the transverse process, they are bifid, ठीक है, इनका शेप बहुत अलग है, देखो these are the transverse process means these are modified, but typical form की बात करेंगे तो these are the transverse processes, ठीक है। तो supraspinous and infraspinous process देख लिया, then transverse processes are there, ठीक है। other processes are articular processes, ठीक है। what is the this role of articular processes, क्या काम होगा इनका? Articulate with muscles. articulate with muscles है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किससे आर्टिकुलेट करेगा? मैम वर्टिब्रा के साथ। हाँ, ठीक है। टू आर्टिकुलेट विद द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले जो होगा, ठीक है। तो आगे वाली क्या करेगी आर्टिकुलर प्रोसेस? दे आर्टिकुलेट विद द कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द प्रीसीडिंग। थोड़ा समझना पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। समझो एक वर्टिब्रा है, इसके आगे भी होंगे, इसके पीछे भी होंगे, ठीक है। तो दीज आर द क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या है? दोनों क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, ये दोनों, ठीक है। इनमें यहाँ पे फेसेट बना हुआ अंदर की तरफ। तो क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस दे आर्टिकुलेट विद द कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब आगे वाली, ठीक है। तो आर्टिकुलर प्रोसेस का क्या काम है? टू आर्टिकुलेट विद द एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है। तो दीज टू आर द क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ठीक है। दे आर्टिकुलेट विद द कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस। दोनों पेयर है, देखो एक इधर है एक इधर है, ठीक है। मतलब एक पेयर में है, दिस वन इज राइट एंड हियर इज द लेफ्ट। तो दीज आर्टिकुलर प्रोसेसेस, cranial articular processes, they articulate with the caudal articular processes of the preceding vertebra, ठीक है। मैं आपको आर्टिकुलेट करके दिखा दी। सपोज इसको पीछे वाला मान लो, इसको आगे वाला, इसके आगे हो गया आर्टिकुलेट। ये दोनों दिख रहे? तो these cranial articular process they articulate with the caudal articular processes of the preceding। ये हो गया आर्टिकुलेशन। इनका काम है आर्टिकुलेशन देने का। अब फिक्स हो गया, देखो मैंने एक हाथ से पकड़ लिया, फिक्स हो गया, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। ये देखो आर्टिकुलेशन हो गया, ये निकल गया, ये आर्टिकुलेट हो गया। तो क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस दे आर्टिकुलेट विद द caudal articular processes of the preceding। ये प्रीसीडिंग है, ये सक्सीडिंग है। ये पहले वाले वर्टिब्रा, ये सेकंड वाला ना, इसके बाद वाला, सेकंड वन फर्स्ट छोड़ो, ये आगे वाला ही पीछे वाला। तो इसकी कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस दे आर्टिकुलेट विद दिस वन, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉर्डल की बात करेंगे, दीज आर द कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस। दीज आर्टिकुलर प्रोसेसेस आर्टिकुलेट विद द क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द डैश। एनीबॉडी? फिर से सुन लो, सक्सीडिंग वर्टिब्रा, गुड, ठीक है। सक्सीडिंग वर्टिब्रा मतलब इसके पीछे वाले से करेंगे और उसके आगे वाली प्रोसेस से। तो दिस कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस आर्टिकुलेट विद द क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द सक्सीडिंग वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये चीज इसके लिए बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस आर्टिकुलेट विद द क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द सक्सीडिंग वर्टिब्रा। इस तरीके से ये देयर इज आर्टिकुलेशन। क्लियर हो गया? तो प्रोसेसेस में क्या क्या बता दिया? एनीबॉडी? शिवम? हाँ बताओ। हाँ ठीक है, ओके। सुप्रास्पाइनस प्रोसेस एंड देन ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। दे आर मेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल। लेकिन आर्टिकुलर का काम क्या है? टू आर्टिकुलेट विद द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग वर्टिब्रे, ठीक है। इसके अलावा अदर प्रोसेस आर देयर, दे आर नोन एज मैमिलरी प्रोसेस एंड द दिस फॉरगॉट, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रोसेस और देयर
देखना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर प्रोसेस, ये जो दिख रहा है आपको ट्यूबरकल लाइक, दे आर नोन एज मैमिलरी प्रोसेस, ठीक है। मैमिलरी प्रोसेस की पोजीशन जो रहेगी ट्रांसफर और उसके बीच में रहती, वो मैं बाद में दिखा दूंगी आपको, इसमें नहीं है क्योंकि, है ना। तो मैमिलरी प्रोसेसेस आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, एंड दे आर नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिपिकल, जरूरी नहीं हो कि वो हो नहीं हो, बट समटाइम्स दे आर आल्सो प्रेजेंट मैमिलरी प्रोसेस, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया रिगार्डिंग टिपिकल वर्टिब्रा, इसमें कोई डाउट? मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम इसमें जाइगोमेटिक प्रोसेस भी होते हैं? जाइगोमेटिक प्रोसेस इसमें नहीं होते। प्री जाइगोमेटिक, हाँ? पोस्ट जाइगोमेटिक, मैम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जाइगोमेटिक प्रोसेस ह्यूमन, कुछ नाम वेरिएशन होगा, मुझे तो नहीं याद आ रहा, ठीक है। इनमें से पढ़ा किसी का, हाँ, मॉडिफ इसी का ही फॉर्म होगा। किसको बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस? मैम ह्यूमन में पढ़ा था, ह्यूमन वर्टिब्रा में। ह्यूमन में, ठीक है, उसमें देख लेंगे, और ह्यूमन में, बट यहाँ पे नहीं बोलते जाइगोमेटिक, और दैट मे बी अनदर नेम फॉर these processes, मैं भी देख लूंगी जाइगोमेटिक प्रोसेस और किसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें नॉमेनक्लेचर में स्लाइट डिफरेंस इज देयर, ठीक है, तो मैं देख के बता दूंगी आपको रिगार्डिंग जाइगोमेटिक प्रोसेस, ओके। पार्टिकुलर प्रोसेसेस देखे, देन ट्रांसिस प्रोसेस, मैमिलरी प्रोसेस, और इसके अलावा एक और होती है, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही क्योंकि देखा नहीं मैंने अभी तक, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है। तो एक प्रोसेस और होती है बीच में, दैट इज ऑप्शनल कह सकते हैं, नॉट द फीचर ऑफ द टिपिकल, ठीक है, वो मैं और बता दूंगी आपको, ओके। तो रिगार्डिंग टिपिकल वर्टिब्रा इट इज क्लियर। नेक्स्ट टाइम पूछूंगी मैं फीचर्स ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है। आज काफी कम लोग हैं, थोड़ा देख तो ले कौन कौन प्रेजेंट है। आंचल सिंह प्रेजेंट मैम। देन आकाश, अगर मुझे इस तरीके से कम अटेंडेंस मिले, आई विल टेक रेगुलरली अटेंडेंस, ठीक है। टाइम आपका लग जाए लेकिन मेरा अटेंडेंस पूरा लूंगी फिर, ओके। मैम ऑफलाइन क्लासेस का कुछ नहीं बन रहा क्या शेड्यूल? ऑफलाइन का भी कैसे बन जाएगा बच्चे, ना अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी बच्चों के थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर के एग्जाम होने हैं, उनके थर्ड टर्म उनका फाइनल एग्जाम होना है, तो अभी उनको बुला भी नहीं सकते, ठीक है। अभी 1 महीना और वेट करो, जुलाई पूरा, ठीक है। हो सकता है जुलाई के शुरू में, वो तो डिपेंड करेगा बेटा सिचुएशन पे, अभी तो धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जैसे ही फॉल डाउन हुआ था आप लोग को आना था, 10 दिन के अंदर सिचुएशन पूरी बदल गई थी। तो अभी एटलीस्ट 10-15 डेज यू वेट फॉर द सिनेरियो, क्या होने वाला है चेंज, ये 15 दिन में अपने को क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग थर्ड वेव, ठीक है। अगर 15 दिन में सब चीजें स्थिति क्लियर हो गई तो फिर धीरे धीरे अपन ठीक करेंगे उसको। जुलाई के मंथ में आप लोग अटेंटिव रहे, ठीक है, अलर्ट रहे, हो सकता है जुलाई में ही बुला लिया जाए आपको। तो ये यस मैम, ग्रुप में से बात चलती है हम लोग की, हाँ उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जुलाई में ही बोल रहे हैं कि जुलाई में अगर हो जाए, क्योंकि हाँ 51 से 50 to 53 स्टूडेंट मेरे पास लिखे लिस्ट, वो वैक्सीनेट हो चुके हैं 53 लगभग। बेटा हम तो चाहते हैं तुम अभी से आ जाओ, बट हमारे हाथ में नहीं है, यस मैम। ठीक है। जुलाई में तो आप लोग को हम लोग चाहेंगे, हम लोग तो रेगुलर बोल रहे हैं ऊपर अथॉरिटी से, बट उनके और भी चीजें हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर, भाई एकदम से कैसे बुला ले, और फैल गया तो फिर क्या करेंगे, है ना, ठीक है। ओके, आई एम लीविंग द क्लास।